एक तरफ है बिहार के खान सर तो दूसरी तरफ है बंगाल के जान सर। दोनों अपने अलग अलग तरीकों से बच्चों को प्रेरित करते हैं। जान सर कोचिंग सेंटर कई सालों से चला रहे हैं, जिसमें जान सर बहुत ही कम फीस में मिडिल क्लास बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर चलाते हैं। जान सर क्लासेस 102 कराया रोड, कोलकाता 17, फर्स्ट फ्लोर नियर जयसवाल स्वीट, ढांगर बाजार के पास ये कोचिंग सेंटर है। जान सर क्लासेस में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को कोचिंग दी जाती है। यहाँ पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी स्ट्रीम की स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स की गाइडेंस उपलब्ध है। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ हाईली एजुकेटेड टीचर्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें अलीशा खातून, वर्षा लंका, जॉन, मोहम्मद हमजा खान, शगुफ्ता परवीन, शाइस्ता परवीन और मनोज सिंह। जान सर को लेकर मॉडर्न कॉलेजिएट स्कूल की हेडमास्टर मिसेस अंजुमन आलम और वाइस हेडमिस्ट्रेस परवीन खान ने जान सर कोचिंग सेंटर की सराहना की। तो फिर देर किस बात की, आप भी आकर यहाँ पर ले सकते हैं जान सर क्लासेस में एडमिशन। आगे क्या कहा गया इस मौके पर, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम है सरवर जान, शेख सरवर जान। सो लाइक this is my coaching center which I am running in the name of @Jan Sir classes. Long time before I was in the corporate line, but this school, Modern College School, the headmistress who has just given the interview, she is our headmistress. And when the school was founded in 1996, I was the first teacher over here. And then I got an opportunity elsewhere, so I went outside. And then I switched back to again in this profession of tuition, coaching centers. So I am running this coaching center over here. I am very grateful to our headmistress, Mrs. Anjuman Alam. She has given me this opportunity to run my coaching center in her premises. I am very grateful and very obliged to her. क्या टाइमिंग है आपका कोचिंग सेंटर? मेरे कोचिंग सेंटर चलता है यहाँ पर लाइक स्कूल आवर्स जब ख़त्म हो जाता है आफ्टर 4, तो आई स्टार्ट फ्रॉम 4:15 और 4:30 लाइक दैट टिल 9 वील रन आवर कोचिंग सेंटर। कितनी क्लासेस से कितनी क्लासेस तक बच्चे यहाँ पर ट्यूशन लेते हैं? बेसिकली आवर फोकस इज मोस्टली ऑन द 9-10 बैचेस, माध्यमिक लेवल, ICSE लेवल, एज वेल एज हायर सेकेंडरी लेवल, ISC लेवल, CBSE, and then the graduation. Now as you all know that the graduation has been like some syllabus has been changed, bifurcation of the syllabus is there, and like for honors student there are like semester 8 semester 4 years courses there. So we have separate teachers, separate batches for the graduation level as well as for 11-12, and presently we are running for arts and commerce only. We don't have any science faculty, but in future we are trying to arrange for the science faculty so that all the science, arts, commerce comes under one roof. तो ये जो आपके ट्यूशन क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस है, तो इसमें बच्चों को आप लोग क्या क्या सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कितने टीचर्स हैं? See, basically like we have different subject teachers. We have different subject teachers, like we are running spoken English classes also. Apart from that, so we have a specialized English teacher who teaches spoken English classes. Okay, then we have different subject teachers like a science teacher who takes the ownership of science students, those who are managing the like accounts and economics. So they look after commerce students. Arts teacher is totally different. They look after arts students. So we have got separate batches of teachers who teaches separate students in the batch wise. Teachers are educated? All are qualified. Mostly my teachers are all master degree holders. Okay, great. How many fees you take? See, the fees structure is as per the locality where we are imparting the educations. So the fees structure is very reasonable as per the, so that the this people, those we are dealing with all the low standard or middle standard sort of people. So according to them, we are providing all subject in a very minimum fees. How many? It's like around for 11-12 or graduation, it comes to all subjects including Hindi, Bengali and whatever vernacular language, science, arts, commerce, all. Yeah. So it depends on the thing, like max to max
800 to 1000 all subjects. All subjects. And very cheap, and that also we give separate teachers for different subjects. A specialized teacher for commerce, a specialized teacher for arts, and a specialized teacher for other subjects. बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपने बच्चों को देना चाहें कोई आपके इंस्टीट्यूट में, कैसे आपसे कांटेक्ट करें? मेरे से यहाँ पर मैं आफ्टर 4 आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। और मैं मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आई रन माई चैनल विद ऑल द अपडेटेड लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ एंड थिंग्स। देन मेरा अपना सेपरेट आपका वो आई हैव माई गूगल लोकेशंस ऑल्सो, सो दे कैन सर्च @Janser classes, दे विल फाइंड माई लोकेशंस। और मैं बताना चाहूँगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो मैंने रखा है वो इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली ऑल्सो। अगर मैं देखता हूँ कोई वेरी वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो आई कॉम्प्रोमाइज़ इन द फीस, और उसको मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो वो आगे बढ़े और अच्छा से अच्छा एडुकेशन ले। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ लाइफ साइंस एंड इंग्लिश एंड ऑल्सो हिस्ट्री जोग्राफी डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस। आई टीच इन क्लास 9 and I prepare them for West Bengal board examination and I also teach ICSE students. कितना परसेंटेज आता है बच्चों का माध्यमिक एग्जाम में? Till now I haven't taught any class 10, so I won't be able to say about them. So till now I have been teaching here since 4 months, so I haven't teach any, but I have taught ICSE student and that student also scored 82%. बच्चों में क्या वीकनेस है? बच्चों में जनरली वीकनेस ये है कि इन लोग का बस बेसिकली ज़्यादा वीकनेस यही है कि फाइनेंशियली वीक होते हैं, और इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम करके इन लोग को पढ़ाते हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीच देते हैं बच्चों को? हाँ, हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को। हर तरह के बच्चे हमारे पास होते हैं, जो कोई वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके मेंटल लेवल के हिसाब से हम लोग उन्हें एडवाइस करते हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि जो अच्छा स्टूडेंट है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना, जिससे दूसरा वाला बच्चा जो है अपने आप को फील करे कि मैं कुछ कर नहीं सकता। बस यही हम लोग करते हैं। बेसिकली कोशिश ये रहता है। इंस्टीट्यूट में जानसर का जो जान लगाते हैं इसमें जी, जानसर जान लगाते हैं। हाँ जी, सर का तो हमेशा बिज़ी रहता है, हमेशा कोचिंग के लिए मेहनत करते रहते हैं बच्चों के लिए। हमेशा वो सर हमेशा बच्चों के हिसाब से ही मैंने टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि वो सब बैठे हुए हैं या कुछ नहीं हम लोग के लिए कर रहे हैं, इसलिए। कितना जान लगा रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन ही इज़ एंड वेरी डेडिकेटेड टीचर। और उनके अंदर में मतलब बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते। मैंने हमेशा उनको देखा है कि ही गोज़ आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प द चिल्ड्रन, और बच्चे उनके साथ बहुत अटैच्ड है एंड इज़ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। वो जो कहते हैं वो करते हैं, एंड वेरी सोशेबल, एंड वी लाइक ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। क्या बच्चों का पढ़ाते हैं? बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, मेरे स्टूडेंट्स भी है। इनफैक्ट अभी जस्ट एचएस का एग्ज़ाम हुआ तो वो बिजनेस स्टडीज़ में हाईएस्ट मार्क्स भी लाए। अच्छा। तो वही है, वही पढ़ाते हैं हम। बिजनेस स्टडीज़ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एज अ स्टूडेंट। हम खुद स्टूडेंट भी है, हम बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ते भी और हम पढ़ाते हैं। और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एज अ यूथ के लिए, जो हम खुद पढ़ रहे भी और इन फ्यूचर मतलब इसमें पढ़ा रहे भी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एक समझ लिए कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो सर भी मुझे दिए। ठीक है, बच्चों के अंदर कुछ मतलब मोटिवेशनल स्पीच आपको देते हैं? हाँ बिल्कुल, एज अ टीचर तो देना ही पड़ता है, वरना बच्चा तो ख़राब हो जाएगा। उसको तो मोटिवेशन देना ही पड़ता है। तो यही कहना चाहते हैं कि मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़े, और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो अपना इंडिया को कैसे करके ब्राइट करेगा, तो करना तो कंपलसरी है। तो जो बच्चे यहाँ पर है उनके माइंड में क्या बनने की ख्वाहिश है? कॉमर्स स्टूडेंट है तो इनफैक्ट उसको बैंक में ही जॉब करना होगा। आर्ट्स लेकर के है तो वो कोई कॉर्पोरेट लाइन में जाएंगे, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट है तो मेरे सारे कॉमर्स के ही पूरे बैच है, तो उन लोगों को बैंक में ही करना। मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? मैथमेटिक्स नहीं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी यस, हाँ जी।
सर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जुनून की हद तक जान करते लगा के हैं। मेहनत करते हैं। जो हाँ, वो चाहते हैं कि हम बस आसमान पे हमारा नाम लिखा जाए। इंशाल्लाह हम लोग भी यही चाहते हैं कि वो कामयाब हो। हमारी दुआ है हम सबों की। बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और जान सर बहुत अच्छे टीचर है और उनकी वजह से मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, पढ़ने में तेज हो गई है। हाँ। इन्हीं इंस्टीट्यूट में पढ़ने से। Good teacher. He has taught me many things, especially about math. He's really good at math, and he taught me about math a lot. And he's really strict, but also he's like a really good at teaching. Like a father to me, and he's also my relative too. So it's not that hard, but his teaching is really good actually. He teaches very well, and he teaches like a father, like you said. 82%. Yes, I had 82%. Okay. How you feel? I feel good. Yeah, and I've taken science in 11 and 12 for future. ओके, देखा जा रहा है और आप साइंस देखते हैं, कैसे बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के ऊपर जो है जिस तरह से नॉर्मली टीचर एक मेहनत करता है, बच्चे का एक तो माइंड कैपेसिटी होता है, उसको बच्चे को टीचर को सबसे पहले उस चीज़ को भनकना पड़ता है कि बच्चा कितना ऑब्जर्व कर सकता है, कितना बच्चा कंसंट्रेशन दे रहा है, कि बच्चा किस चीज़ में कंसंट्रेशन है, उसके हिसाब से बच्चे को देखना पड़ता है कि बच्चे का किधर ध्यान जा रहा है। मतलब किसी खेल कूद से अगर बच्चा पढ़ सकता है या फिर ज़्यादा सिंसियर होकर के पढ़ सकता है, ये सब चीज़ पहली बात देखना पड़ता लेकिन है। अभी के दौर में देखा जाता है बच्चों का ज़्यादा ध्यान मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है, तो क्या आप लोगों के यहाँ मोबाइल लाना मना है या मोबाइल लेके बच्चे आते हैं? नहीं, मोबाइल कुछ लाना तो मना है, लेकिन कुछ बच्चे अगर लेकर, ऐसे कुछ बच्चे दूर से आते हैं, लड़की वगैरह भी है, तो घर वाले को एक फिक्र होती है जिसके वजह से बच्ची लोग को लेकर आती है मजबूरी में। अच्छा। वरना मोबाइल में कोई भी बच्चे लोग क्लास वगैरह के दौरान मोबाइल वगैरह यूज़ तो करने के ऐसे ये नहीं, उसके लिए हार्ड पनिशमेंट वगैरह दिया जाता है। वरना फिर मोबाइल का अगर बच्चे लोग का ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है तो उसी तरह से बच्चे लोग को मतलब मोबाइल वगैरह से अगर ज़्यादा ये तो मतलब अलग अलग टाइप उसको मोबाइल एग्जाम्पल दिया जाता है इस तरह से डेली लाइफ से, जिससे वो थोड़ा मोबाइल से दूर हट सके, ताकि और पढ़ाई में अपने माइंड को दिखा सके कि इस चीज़ से मोबाइल से ही कनेक्ट करके या डेली लाइफ से कुछ कनेक्शन हो करके। बच्चे और बच्चियाँ कहाँ से आती हैं? बच्चे काफ़ी कुछ यहाँ के भी हैं, कुछ आते हैं आपके तुपसे वगैरह की तरफ के, ये सब एरिया से जगह के आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सभी जगह से बच्चे हैं आते हैं। We teach them biochemistry, English, and then we also teach them subjects from Hindi and other subjects such as pol science, psychology. So these are the subjects we focus on. We also take BA, we take BCom, and we also take class 11, 12. How many students are there? Well, there are a lot of students, but for my batch, there are a couple of batch. I have at least 10 batches. Okay, and from each batch, at least I have 5 students, around 5 students. And currently, I am teaching English. So I usually focus on English subjects. But other than that, I also take biology, chemistry, pol science. Spoken English. I also take spoken English.